কারিগণ রাজ্যের পদাধিকারী মমিতাদি সহ অন্যান্যরা সবাইকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা। সর্বোপরি এই রৌদ্রে গরমে সব উপেক্ষা করে যে হাজার হাজার কর্মী কার্যকর্তা এখানে উপস্থিত হয়েছেন সবাইকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রথমবার চেয়েছেন আমাদের কাছ থেকে, দাবি করেছেন যে 370 সিট দিন। যে প্রধানমন্ত্রী যার কাছে কিছু না চাইলেও পাওয়া যায়, আমরা কেউ তার কাছে ঘর চাইনি আবাস যোজনার, তিনি সবার ঘর বানিয়ে দিচ্ছেন। তার কাছে শৌচালয় চাইননি মায়েরা, তিনি শৌচালয় বানিয়ে দিচ্ছেন। কোনো মা তাকে চিঠি লেখেনি, SMS করেনি, হোয়াটসঅ্যাপ করেনি যে আমাকে গ্যাস দিন বাড়িতে, তিনি বাড়িতে গ্যাস দিয়েছেন। যখন সংকট হয়েছে কোভিডের, আমরা খাওয়ার জন্য চিন্তা করেছি, কাজকর্ম রাস্তাঘাট কলকারখানা বন্ধ, 100 দিনের কাজ বন্ধ, তখন ভাবছিলাম কি খাবো। প্রধানমন্ত্রী বলছেন চিন্তা করবেন না, আমি তো আছি, আপনার বাড়িতে চাল ডাল পৌঁছবে। 4 বছর ধরে পৌঁছাচ্ছেন, চাল পাচ্ছি। ডালটা আটকে গেছে, যে আটকেছে সে এখন জেলের ভাত খাচ্ছে, জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। 1 কিলো ডাল পাইনি, সারা দেশ চাল ডাল গম পাচ্ছে, আমরা খালি চাল পাচ্ছি। সেই প্রধানমন্ত্রী আজকে আসছেন আমাদের জেলাতে, এখানে এই 2 লোকসভার ভোটারদেরকে আবেদন করতে, যাতে তারা পদ্মফুলে ভোট দেন। সেই প্রধানমন্ত্রী প্রথমবার চেয়েছেন যে 370টা সিট আমাকে দিন, কারণ যে কাজটা অসম্পূর্ণ আছে তার জন্য এই শক্তি লাগবে। যাদের এখনো বাড়ি তৈরি হয়নি বাড়ি হবে, যার বাড়ির সামনে রাস্তা হয়নি রাস্তা হবে, যার বাড়ির সামনে জল আসেনি খাবার জল আসবে, বিদ্যুৎ আসবে, ড্রেন তৈরি হবে, যে স্কুলে টিচার নেই টিচার আসবে, যে থানায় পুলিশ নেই পুলিশ আসবে, যে হসপিটালে ডাক্তার নেই ডাক্তার আসবে, যে এয়ারপোর্ট অসম্পূর্ণ আছে সেটা সম্পূর্ণ হবে, যে রেল লাইন অসম্পূর্ণ আছে সম্পূর্ণ হবে, যে হাইওয়ে অসম্পূর্ণ আছে সম্পূর্ণ হবে। জেলায় জেলায় মেডিকেল কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, নার্সিং কলেজ এবং রাজ্যে রাজ্যে এইমস তৈরি হচ্ছে, সেটা সম্পূর্ণ হবে। যে প্রধানমন্ত্রী আমাদেরকে বুলেট ট্রেনের স্বপ্ন দেখিয়েছেন, বুলেট ট্রেন কাজ শুরু হয়ে গেছে। যে প্রধানমন্ত্রী আমাদেরকে বন্দে ভারত ট্রেন দিয়েছেন, অমৃত ভারত ট্রেন দিয়েছেন, আমাদেরকে যখন মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছিলাম কোটি কোটি লোক, আমাদের ফ্রিতে ভ্যাকসিন দিয়েছেন। খাবার খিদে মেটাবার জন্য আমাদের চাল ডাল দিয়েছে। সেই প্রধানমন্ত্রী বিশ্বের 100টা দেশকে তিনি ভ্যাকসিন দিয়েছেন। আর আজ ভারতবর্ষের কোণে কোণে যেরকম বোম বন্দুক মাইন ফাটতো, মানুষ ভয়ে ভয়ে ঘুরে বেড়াতো, ঘরের বাইরে যেত, সেই প্রধানমন্ত্রী সারা ভারতবর্ষে শান্তি নিয়ে এসছেন। বোম বন্দুকের আওয়াজ বন্ধ করেছেন। আজ ভারত মাতা কি জয়, বন্দে মাতরম স্লোগান উঠছে, জয় শ্রীরাম স্লোগান উঠছে। যে প্রধানমন্ত্রী আমাদেরকে রাম মন্দির দিয়েছেন, কাশী বিশ্বনাথের মন্দির দিয়েছেন, মহাকালেশ্বর দিয়েছেন, যে প্রধানমন্ত্রী জম্মু কাশ্মীর থেকে 370 হাটিয়ে দেশের অখণ্ডতার নিদর্শন রেখে জম্মু কাশ্মীরকে ভারতের অঙ্গ করেছেন, যে প্রধানমন্ত্রী ভারতবর্ষের কোণে কোণে রাস্তাঘাট জল বিদ্যুতের সঙ্গে মন্দির নির্মাণ করে দিচ্ছেন ভারতের সংস্কৃতিকে উজ্জীবিত করার জন্য, তিনি আমাদের কাছে আজকে চেয়েছেন যে 370 সিট দিন। এটা উনি ওনার জন্য চাননি। 282তে উনি প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন, 303 সিট পেয়ে তিনি প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন, 370 পেলেও প্রধানমন্ত্রী হবেন এবং সমান কাজ করবেন। কিন্তু এই দেশ 140 কোটি মানুষ, তারা নিজের পুরুষার্থকে দেখাক, যে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন আমরা করেছি, এমন শক্তিশালী সরকার দিয়েছি, দেশ আর বিদেশে তার বিরোধিতা করে কেউ কাজ আটকাতে পারবে না। উনি মানুষের জন্য যা চাইবেন তাই করবেন, তাই আমাদের 370 আসন দিতে হবে, সেই কথা বলার জন্য তিনি আসছেন। আমি প্রধানমন্ত্রী যিনি এই 10 বছরের মধ্যে ভারতবর্ষের মানচিত্র, বিশ্বের মানচিত্রে ভারতবর্ষের স্থানকে পাল্টে দিয়েছেন, যিনি আমাদের দেশে 200 কোম্পানি দিয়ে মোবাইল তৈরি করছেন। এবছর 80,000 কোটি টাকার মোবাইল রপ্তানি করেছি, তার মধ্যে 60,000 কোটি টাকার আমরা অ্যাপেলের মোবাইল রপ্তানি করেছি। আমরা চন্দ্রযান পাঠিয়েছি, আমাদের বিজ্ঞানীরা করেছেন, আমাদের বিজ্ঞানীরা ভ্যাকসিন তৈরি করেছেন, আমাদের বিজ্ঞানীরা সূর্যযান পাঠিয়েছেন। এটা সম্ভব হয়েছে নরেন্দ্র মোদীর দ্বারা, তার প্রেরণাতে। সারা বিশ্বের মধ্যে তাকে অনুকরণ করে আজকে রাজনীতি হচ্ছে, উন্নয়ন হচ্ছে। ডোনাল্ড ট্রাম্প পর্যন্ত তার নামে প্রচার করে রাষ্ট্রপতি হতে পারেন। আজকে তিনি ব্র্যান্ড তৈরি হয়েছেন, তিনি দেখতে অতি সাধারণ,
কাজ করছেন অতি অসাধারণ। তাই আমাদের মধ্যে সমাজে যে সাধারণ মানুষরা তারাও আজকে অসাধারণ কাজ করে, চন্দ্রযান সূর্যযান থেকে ভ্যাকসিন তৈরি করেছে। তাই সেই প্রধানমন্ত্রীর হাত শক্ত করার জন্য বর্ধমান আমরা জিতে আছি, জেতা সিট, তাতে মার্জিন বাড়াতে হবে, 1000 নয় লাখের উপরে নিয়ে যেতে হবে। কি হবে তো? লাখের উপরে লিড হবে তো বর্ধমানে? পাশের সিট মাননীয় অসীম দা এসছেন বর্ধমান পূর্ব, আমরা অল্প ভোটে হেরেছিলাম, কিন্তু এবারে সেই সিট চাই। 303-এর মধ্যে বর্ধমান দুর্গাপুর আছে, কিন্তু 370 যদি সিট দিতে হয় মোদিজিকে, তাহলে বর্ধমান পূর্ব সিটে অসীমদাকে জেতাতে হবে। কি ওখান থেকে যারা এসছেন অসীমদাকে জেতাবেন তো? জেতাবেন তো? নরেন্দ্র মোদী বর্ধমানে আসছেন যেন আমরা এখানে জোড়া সিট দিতে পারি। জোড়া ফুলকে হারিয়ে জোড়া পদ্ম দিতে হবে, হবে তো? বন্ধুগণ, আজ পশ্চিমবাংলার চারিদিকে আগুন জ্বলছে, তাপ প্রবাহ চলছে। 40, 45, 46, মেদিনীপুরে 47 হয়ে গেছে। এই যা আজকে প্রকৃতি উষ্ণ হয়ে গেছে, সঙ্গে সঙ্গে রাজনীতি উষ্ণ হয়ে গেছে। খুন জখম দুর্নীতিতে চারিদিকে আগুন জ্বলছে। যারা বসে আছেন ওখানে বসুন, প্রধানমন্ত্রীর সামনে আসবেন তখন দেখে নেবেন। নিজের জায়গা ছাড়বেন না, বিশৃঙ্খলা করবেন না। বন্ধুগণ, আমাদের এখানে যে সরকার চলছে, কেন্দ্র সরকারের যোজনা সব টাকা লুট করছে, তার প্রতিবাদ করলে কেস দিচ্ছে, ভয় দেখাচ্ছে। আর এই লুটের ফলে গ্রাম বাংলার গরিব মানুষ, এসটি, এসসি, ওবিসি তারা বঞ্চিত হচ্ছেন। তাই যারা চাকরি চুরি করেছে তাদেরকে হারাতে হবে, যারা 100 দিনের কাজের টাকা লুট করেছে হারাতে হবে, যারা রাস্তার টাকা চুরি করেছে হারাতে হবে, যারা শৌচালয়ের টাকা চুর করেছে তাদেরকে হারাতে হবে। প্রধানমন্ত্রীর এখানে পৌঁছতে এখনো 10 মিনিট লাগবে। 3টে হেলিকপ্টার আসবে, নামবে, উনি তারপরে আমাদের ডায়াসে আসবেন, আমরা তাকে স্বাগত করব। দৌড়ে লাভ নেই, পেছনে আছে হেলিপ্যাড, দেখা যাবে না। সেই জন্য প্রধানমন্ত্রীকে আমরা দেখব। নিজের জায়গায় বসুন শান্তিপূর্ণভাবে। এখনো পেছনে বহু লোক দাঁড়িয়ে আছেন, তাদেরকে ছেড়ে দিন, সামনে আসতে দিন। যারা ব্যারিকেডের ওপাশে আছেন তারা চলে আসুন, আমার ডান দিকের হ্যাঙ্গারে ছায়াতে চলে আসুন। পেছনে যারা আছেন সবাইকে আহ্বান করছি, সবাই এদিকে বাঁ দিকের হ্যাঙ্গারে চলে আসুন, বাকি জায়গা ভর্তি হয়ে গেছে। ভারত মাতা কি, নরেন্দ্র মোদী, নরেন্দ্র মোদী। বন্ধুগণ, হেলিকপ্টারের পর হেলিকপ্টার আসছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পশ্চিমবাংলাতে বিজেপির হাওয়া তুলে দিচ্ছেন, সেই হাওয়াতে দেখুন খড়কুটো উড়ে যাচ্ছে। টিএমসি ওই খড়কুটোর মতো উড়ে যাবে হেলিকপ্টারের হাওয়াতে। মোদি, 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 নরেন্দ্র মোদি, নরেন্দ্র মোদি। এখনো পেছনে যারা ব্যারিকেডের পেছনে দাঁড়িয়ে আছেন, যদি পুলিশ আটকায় ব্যারিকেড ভেঙে চলে আসুন, কাউকে বাইরে আটকানো যাবে না। যারা বাইরে আছেন চলে আসুন, কাউকে আটকাবেন না। যারা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে দেখার জন্য এসছেন তারা সবাই চলে আসুন, ব্যারিকেডে কেউ আটকাবেন না, সব ভেতরে চলে আসুন। প্রধানমন্ত্রী 5 মিনিটের মধ্যে ডায়াসে আসবেন, তাই সবাইকে ভেতরে আসার জন্য আবেদন করছি। অনেকে দূর থেকে দেখছেন, হেলিকপ্টার দেখা হয়ে গেছে, এবার চলে আসুন ডায়াসের সামনে। বন্ধুগণ, যা আমি বলছিলাম, এই সরকার যে আপাদমস্তক দুর্নীতিতে ছেয়ে গেছে, আর আমরা দুর্নীতির বিরোধিতা করছি, তাই আমাদের উপরে কেস দেওয়া হচ্ছে, কর্মীদের মারা হচ্ছে। গতকাল থেকে বর্ধমান শহরে এবং আশপাশে বহু জায়গায় আমাদের কর্মীদের কাছে SMS এসছে যে কালকে তুমি যাবে না মোদির সভায়, তাহলে কিন্তু 2 মেয়ের মতো করে দেব। ফোন এসেছে, তুমি এজেন্ট হবে না। আমি ভাই এখান থেকে বলে দিচ্ছি, যারা এই ভুলটা করছেন, মেসেজ দিচ্ছেন, ফোন করছেন, বিজেপির কর্মীদের ভয় দেখাচ্ছেন, আমি দিলীপ ঘোষ বলছি, আমি বর্ধমানে এসছি জেতা সিটকে জিতে অধিক মার্জিন বাড়াতে। আমি 13 তারিখ বা 3 তারিখে 4 তারিখের কথা বলছি না, তারপরে 5 বছরের কথা বলছি। বিজেপি এখানে জিতবে,
যারা আমাদের চমকাচ্ছে সেই ফোন নম্বরগুলো আমরা রাখছি, তারপরে ফোন নম্বর ধরে ধরে খোঁজ করব আমরা। সুদে আসলে সব হিসাব হবে। চমকানো ধমকানোর রাজনীতি বর্ধমানে চলতে দেব না। কেন্দ্র সরকারের প্রকল্পের টাকা লুট হতে দেব না, কাটমানি খেতে দেব না, তোলাবাজি করতে দেব না, বিরোধী পক্ষের কর্মীদের ভয় দেখানো কেস দিয়ে রাজনীতি করতে দেব না, এসব বন্ধ করব। তাই যারা এখানে বালির টাকা খাচ্ছে, কয়লার টাকা খাচ্ছে, গরু পাচারের টাকা খাচ্ছে, পাথর পাচারের টাকা খাচ্ছে, তাদেরকে বলে দিচ্ছি, অনেক খেয়েছেন, অনেক বাড়ি করেছেন, অনেক গাড়ি করেছেন, ছেলে মেয়েকে অন্য রাজ্যে পড়াচ্ছেন 20-30 লাখ টাকা দিয়ে। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, অশান্তি করবেন না, আপনার বাকি জীবন অশান্ত হয়ে যাবে। অনেক সহ্য করেছি, হিংসার রাজনীতি চলতে দেব না, এটা আমাদের সংকল্প। তাই বলুন, আপনারা যারা চাকরি বিক্রি করে টাকা খেয়েছে তাদেরকে ভোট দেবেন? দেবেন চাকরি চোরদের? যারা চাল চুরি করেছে, রেশন চুরি করেছে, ভোট দেবেন? যারা রাস্তার টাকা চুরি করেছে, ভোট দেবেন? যারা শৌচালয়ের টাকা চুরি করেছে, ভোট দেবেন? যারা ড্রেনের টাকা চুরি করেছে, ভোট দেবেন? যারা জলের টাকা চুরি করেছে, ভোট দেবেন? যারা কিষাণ সম্মান নিধি চুরি করেছে তাদের ভোট দেবেন? এই গ্রাম বাংলার গরিব মানুষ, এসসি, এসটি, ওবিসি, এই মানুষের অধিকারকে লুট করা হয়েছে। সেই অধিকার যারা লুট করেছে তাদের যোগ্য জবাব দিতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী এখনো ভোট চাইছেন। দেখুন, সন্দেশখালী থেকে শীতলকুচি, কুচবিহারের শীতলকুচি, আসাম বর্ডার, সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে মহিলারা হাহাকার করছেন। সব জায়গায় খুন ধর্ষণ চলছে। মহিলারা রাস্তায় বেরিয়েছেন ঝাড়ু নিয়ে, লাঠি নিয়ে। কেন? আজকে তাদের সম্মান নষ্ট হচ্ছে। ধান চাল থেকে আরম্ভ করে টাকা পয়সা, চাকরি লুট করার পরে মা বোনদের সম্মান লুট করা হচ্ছে। এর যোগ্য জবাব দিতে হবে। তাই বন্ধুগণ, এবারের নির্বাচন খুবই গুরুত্বপূর্ণ, দেশের জন্য বটে, বাংলার জন্য বটে। গতবারে মাননীয় অমিত শাহ আমাদের 22 সিটের টার্গেট দিয়েছিলেন, আমরা তাকে 18টা উপহার দিয়েছিলাম। পরে দুজন জয়েন করেছিলেন, 20 সিট হয়েছিল। এবারে মাননীয় অমিত শাহ, যিনি পশ্চিমবাংলার মাটিকে হাতের তালুর মতো চেনেন, গত 10 বছর ধরে সেখানে সংগঠন দাঁড় করিয়েছেন, তিনি আবার আগামী 6 তারিখ দুর্গাপুরে সভাতে আসছেন। তিনি বাংলার কর্মীদেরকে 35 সিটের টার্গেট দিয়েছেন। কি 35 পৌঁছবে কিনা? পৌঁছবে কিনা? তাহলে বর্ধমান দুর্গাপুর আর বর্ধমান পূর্ব দুটো সিটই দিতে হবে। দুটো দেব তো আমরা। আমি আজকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে বলে দেব, বর্ধমানের কর্মীরা প্রতিজ্ঞা নিয়েছেন, দুটো সিট জিতিয়ে দেবেন। আসছেন কি? আসছেন দেখেন। তো আমি আপনাদের প্রতিনিধি হিসাবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে কথা দেব যে আপনি আজকে বর্ধমানে এসেছেন, যে দুটো সিটের কর্মীরা এসেছেন, দুজন এমপি পার্লামেন্টে আপনার সামনে উপস্থিত হবেন। হবে তো? হবে তো? বিজেপির কর্মীরা কথা দিলে কথা রাখে, দরকার হলে প্রাণ দেয়, কিন্তু কথার খেলাপ করে না। তাই তো? তাই অনেক আশা করে মাননীয় অমিত শাহ আমাদেরকে টার্গেট দিয়েছেন 35। কারণ তিনি জানেন বাংলার কর্মীরা প্রাণ দিতে জানে, কিন্তু কথার খেলাপ করেনি। 250-র বেশি কর্মীকে খুন করা হয়েছে। সেই খুনের যে মাটি, রক্ত আর ঘামে ভেজা মাটি বাংলার, সেইখানে তপস্যা করেছি আমরা। এবারে পরিবর্তনের ডঙ্কা বাজবে। 26-এ এখানে বিজেপি সরকার হবে, নবান্নে বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী বসবে। তাই এবারে সেমিফাইনাল 35 আসনকে টার্গেট করে আমাদের লড়াই করতে হবে। এই আশা রেখে আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ। এখনো বহু কর্মী আসছেন, তাদেরকে পাশে বসান, যেন শান্তিপূর্ণভাবে আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ শুনতে পারি। প্রধানমন্ত্রী এসে গেছেন, আমরা স্লোগান দিয়ে তাকে স্বাগত জানাবো। সেই জন্য আরেকবার আওয়াজ দিন, তিনি যেন হেলিকপ্টার থেকে নামার পরে তার নাম শুনতে পারেন। মোদি, 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 নরেন্দ্র মোদি, নরেন্দ্র মোদি, দেশের জনপ্রিয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, নরেন্দ্র মোদি, নরেন্দ্র মোদি,
বিশ্বের জনপ্রিয়তম নেতা নরেন্দ্র মোদী, দেশের সফলতম প্রাইম মিনিস্টার নরেন্দ্র মোদী, মোদী মোদী মোদী। भारत माता की, भारत माता की। मोदी, नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। सुस्वागतम, मोदी जी स्वागतम, स्वागतम स्वागतम, मोदी जी स्वागतम, स्वागतम स्वागतम, मोदी जी स्वागतम, स्वागतम स्वागतम। मोदी 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 मोदी। মায়েদের কাছে অনুরোধ, মোদিজি মঞ্চে আসার পর একটু উলুধ্বনি দেবেন দয়া করে। মোদি 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 মোদি। मोदी जी स्वागतम, स्वागतम स्वागतम, मोदी जी स्वागतम, स्वागतम स्वागतम, मोदी जी स्वागतम, स्वागतम स्वागतम, मोदी जी स्वागतम, स्वागतम स्वागतम। मोदी जी स्वागतम, स्वागतम स्वागतम, मोदी जी स्वागतम, स्वागतम स्वागतम। मोदी 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 मोदी। আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন আমাদের সবার কাঙ্ক্ষিত একটি মানুষ, বিশ্ববরেণ্য প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী জি। মোদীজিকে বরণ করে নেওয়ার জন্য আমি আমাদের রাজ্য সভাপতি শ্রী সুকান্ত মজুমদারকে আহ্বান জানাচ্ছি উত্তরীয় দিয়ে। মোদি 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 মোদি। এবারে মোদিজিকে মেমেন্টো দিয়ে বরণ করার জন্য আমাদের দুই বর্ধমান জেলার সভাপতি শ্রী অভিজিৎ তা এবং গোপাল চট্টোপাধ্যায়কে আহ্বান জানাচ্ছি। এবারে মোদিজিকে মেমেন্টো দিয়ে অভ্যর্থনা জানাবেন আমাদের বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্র এবং বর্ধমান পূর্বের লোকসভা কেন্দ্রের দুই প্রার্থী শ্রী দিলীপ ঘোষ এবং শ্রী অসীম সরকার মহাশয়। এবার শ্রী মোদিজিকে অভিবাদন জানাবেন হাতে আঁকা ছবি দিয়ে আমাদের বর্ধমান জেলার সম্পাদক শ্রী অভিজিৎ দত্ত মহাশয়। এবারে আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখতে আসছেন আমাদের রাজ্যের রাজ্য সভাপতি শ্রী সুকান্ত মজুমদার মহাশয়। भारत माता की। महान देशेर महान नेता नरेंद्र मोदी। मोदी जी एत दूर থেকে এসেছেন, এত আওয়াজ আসতে হবে না, শেষ পর্যন্ত 14 তলা অবধি যাওয়া যায়। महान देशेर महान नेता नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। जय श्री राम,
জয় শ্রীরাম। বন্ধুগণ, আজকে আমাদের দুজন প্রার্থীর সমর্থনে এই সভা, এরপরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আরো দুটো জনসভা আছে, তাই আমি বক্তব্য রাখবো না। আমি শুধু আপনাদের কাছে আহ্বান জানাতে এসেছি, আমাদের এই কেন্দ্রের প্রার্থী মাননীয় দিলীপ ঘোষ, যাকে দেখে আমরা চোখে চোখ রেখে লড়াই শিখেছি, এবং পাশের কেন্দ্র আমাদের সকলের প্রিয় আমাদের প্রার্থীকে, সরকার সাহেবকে বিপুল ভোটে জয়ী করে মোদিজির কাছে পাঠাতে হবে। আপনাদের কাছে এই আহ্বান জানাই, আপনারা পাঠাবেন তো? পাঠাবেন তো? সকলকে আমার বিনম্র শ্রদ্ধা প্রণাম ও ভালোবাসা। आज भी यहां इतनी बड़ी संख्या में आप सब हमें आशीर्वाद देने आए हैं। माताएं बहनें भी बहुत बड़ी संख्या में आई हैं। इस समय तो घर में माताओं बहनों को बहुत काम रहता है, खाना पकाना, घर के काम करना, ये सब छोड़ के इतनी बड़ी तादाद में आप आए हैं। ऐसा लग रहा है ये मेरा परिवार। आज मुझे उनके दर्शन करने का अवसर मिला है। साथियों, मुझे देश ने इतना आशीर्वाद दिया है, आप सबने मुझे इतना आशीर्वाद दिया है, शायद कोई इंसान अपने जीवन में ऐसी कल्पना तक नहीं कर सकता है, शायद दुनिया में कोई इंसान कल्पना नहीं कर सकता है कि ईश्वर रूपी जनता जनार्दन इतने आशीर्वाद बरसाएं और लगातार बरसाएं, और सालों साल ये आशीर्वाद बढ़ता ही जाए, बढ़ता ही जाए, बढ़ता ही जाए। जीवन में इससे बड़ा संतोष क्या होता है। मेरे प्यारे देशवासियों, आप भी जानते हैं, अगर पद की लालसा हो, प्रतिष्ठा की लालसा हो, पीएम पद की लालसा हो, तो एक बार इंसान पीएम के शपथ ले ले, फिर उसके जीवन में वो ऊंचाई तो प्राप्त हो ही जाती है, इतिहास में नाम दर्ज हो ही जाता है। तो फिर लोगों को लगता है कि मोदी जी दो बार एमपी रहे, पीएम रहे, दुनिया में इतना नाम हो गया। अरे कभी तो आराम करो। लेकिन मेरे देशवासियों, मैं मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ। मैं खुद के लिए जीना नहीं चाहता हूं। मैं तो आप सबकी चरण रज माथे पर चढ़ाकर, आपकी सेवा का संकल्प लेकर, ये महान भारत माता के 140 करोड़ देशवासियों की सेवा करने के लिए निकला हूं। मोदी का एक ही सपना है, एक ही सपना, और वो सपना है आपके सपनों को पूरा करना। मुझे ज्यादा से ज्यादा आशीर्वाद चाहिए, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा आपकी सेवा कर सकूं, ज्यादा से ज्यादा
देश की सेवा कर सकूं। और आप तो जानते हैं मेरे पास है क्या, न आगे कुछ है न पीछे कुछ है, न ही मुझे किसी के नाम कुछ करके जाना है। मेरे लिए तो आप ही मेरी परिवारजन है। मेरा भारत मेरा परिवार। अगर मेरा कोई वारिस है तो ये मेरे देश के हर परिवार के बच्चे मेरे वारिस हैं। मैं उनके लिए कुछ छोड़ के जाना चाहूंगा। आप ही मेरे वारिस हैं, मेरा अपना कोई वारिस नहीं है। मुझे अपने किसी के लिए कुछ ना करना है ना कुछ छोड़ना है। मुझे जो भी करना है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके बच्चों की विरासत के लिए करना है। मुझे आपके साथ साथ उनका भी भविष्य बहुत उत्तम बनाना है। महात्मा जी, आप प्रसाद लेके आए हैं? अच्छा भाई, हमारे कैमरामैन जरा वो प्रसाद ले लीजिए। हाँ, मुझे मिल जाएगा, माला आपकी मिल जाएगी। आप कब से वहीं से ले लेंगे, आप वहीं रुकिए, वो ले लेंगे। आप कब से हाथ ऊपर के खड़े, थक जाएंगे। इस उम्र में आप इतना आशीर्वाद दे रहे हैं, मैं यहां से आपको प्रणाम करता हूं जी। भाइयों और बहनों, मोदी विकसित भारत बनाने के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। आखिर क्यों? ये मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूं, मैं अपनों के लिए कर रहा हूं। और मेरे अपने मतलब मेरा भारत मेरा परिवार। आपके सपनों के लिए संकल्प लेकर के जी रहा हूं। मेरे प्यारे भाई बहन, जब मैं गरीबी देखता हूं, जब मैं आपकी परेशानियां देखता हूं, तो मेरी छटपटाहट बहुत बढ़ जाती है। मैं और ज्यादा बेचैन हो जाता हूं, क्योंकि मेरे लिए जब मैं सब देखता हूं तो मुझे मेरे जीवन के वो दिन याद आ जाते हैं। क्योंकि मैंने बचपन में यही देखा है, मेरे आसपास भी यही देखा, परिवार में भी यही देखा। जिंदगी जीने के लिए परिवार के लोगों को कितनी मशक्कत करनी पड़ती है, कितना जूझना पड़ता है, वो मैंने देखा है, जिया है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि अब एक भी भारतीय ऐसी गरीबी में जीने के लिए मजबूर हो। मेरा भारत मेरा परिवार अब गरीबी की जिंदगी नहीं जिएगा। आज मुझे ये देखकर संतोष होता है कि पिछले 10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। ये मैं संतोष मार करके सोने वाला नहीं हूं। हां, मेरा विश्वास बढ़ गया है कि मैं अगर इतनी मेहनत करता हूं, अगर 25 करोड़ लोग निकल सकते हैं गरीबी से बाहर, आने वाले 5 साल मेहनत जरा ज्यादा करूंगा ताकि सबके सब गरीबी से बाहर आ जाए। जब उनकी गरीबी दूर हो सकती है
तो ये तय है कि भारत से हम हर किसी की गरीबी हटा सकते हैं। इसलिए मैं जी तोड़ मेहनत कर रहा हूं और मैंने देखा है कि मेरी मेहनत में रंग भर दिया है मेरे देश के गरीबों ने। मेरी मेहनत को नई ताकत दी है मेरे देश के गरीबों ने, क्योंकि जब मैंने उनको कहा कि मैं आपको हथियार दूंगा, मैं आपको अवसर दूंगा, आपकी मेहनत गरीबी को परास्त करेगी, और उन्होंने मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर के चल दिए और 25 करोड़ लोग गरीबी को ध्वस्त कर करके बाहर निकल आए। और इसलिए इस सफलता में उन गरीबों का सबसे बड़ा योगदान है जो मेरी बात मान करके मेरे साथ मेहनत के लिए आगे आए। और जब मैं उनको कहता था कि आप पहले इतनी मेहनत करते तो नहीं, बोले साहब आपको देखते हैं ना, इसलिए हमको लगता है कि आप हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं तो हमें हमारे लिए और ज्यादा करनी चाहिए। और इसलिए एक प्रकार से हर किसी को मेहनत का चेप लग गया और हर कोई मेहनत करने लग गया तो गरीबी जाने लगी। भाइयों, मैं जानता हूं कि भारत विकसित होगा तो उसका लाभ हमारे देश के प्रत्येक नागरिक को होने वाला है, आपको होने वाला है। भारत विकसित होगा तो हर भारतीय की आय बढ़ेगी, और जब हर भारतीय की आय बढ़ेगी तो मेरे बंगाल के लोगों की भी आय बढ़ेगी, मेरे दुर्गापुर के लोगों की आय बढ़ेगी। हमारे दिलीप जी इतनी मेहनत कर रहे हैं, यहां तो वर्धमान में और ज्यादा बढ़ेगी। मैं चाहता हूं धान के कटोरे के रूप में वर्धमान की फिर से जय जयकार हो। मैं चाहता हूं इंडस्ट्रियल सिटी के रूप में दुर्गापुर की पहचान देश में ही नहीं दुनिया में सशक्त हो। साथियों, बीते 10 साल में महिला स्वयं सहायता समूहों से 10 करोड़ महिलाएं जुड़ी हैं। मोदी ने इन्हें लाखों करोड़ रुपए की मदद दी है। आज ये स्वयं सहायता समूह अपना व्यापार कारोबार फैला रहे हैं। मोदी ने इन समूहों की 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने की गारंटी दी है। मोदी गांव देहात की अपनी बहनों को ड्रोन पायलट बनाने में भी जुटा है। इतना कुछ मैं क्यों कर रहा हूं? ताकि मेरी बहनों बेटियों आर्थिक रूप से और सक्षम बने, उनकी आमदनी बढ़े। लेकिन साथियों, ये टीएमसी, ये लेफ्ट और ये कांग्रेस वाले कर क्या रहे हैं? ये दिन रात क्या कर रहे हैं? मोदी का सिर लाठी मारकर फोड़ देंगे। ये कहते हैं मोदी को गोली मार दो। लेकिन मैं भी डरने वालों में से नहीं हूं। और ये नामदार लोग समझ लें, कामदार कभी डरते नहीं हैं। ये नामदार लोग समझ लें, गरीब ने कभी डर करके जिंदगी जी नहीं है। और मैं गरीबी से निकला हूं तो डरना तो मेरी डिक्शनरी में ही नहीं है। और हम गरीब लोग जीत के बड़े पक्के होते हैं। एक बार ठान लिया मतलब ठान लिया। मैंने भी ठान लिया है, जितनी नफरत मुझसे करोगे, जितनी गालियां मुझे दोगे, मैं उससे ज्यादा देशवासियों की सेवा करूंगा। साथियों,
लेफ्ट और कांग्रेस और टीएम के पास विकास का विजन ही नहीं है। लेफ्ट, कांग्रेस और टीएमसी किसी राज्य का क्या हाल कर सकती है, ये आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। ये बगल में त्रिपुरा लेफ्ट वालों ने तबाह करके रखा था। 35 साल राज किया और पिछले 5 साल में बीजेपी ने पूरे त्रिपुरा की जिंदगी बदल दी। दोस्तों, लेफ्ट वाले गए तो विकास का सूरज उगने लगा। आपके सामने जीता जाता उदाहरण है। देश का विकास करना ये इनके बस की बात नहीं है। इन्हें बस एक ही काम आता है, वोट के लिए समाज को बांटो, देश को बांटो। मैंने कल टीवी पर देखा, यहां बंगाल में टीएमसी के एक एमएलए ने सरेआम धमकी दी। वो कह रहे थे कि हिंदुओं को 2 घंटे में भागीरथी में बहा देंगे। ये कौन सी भाषा है भाई? ये कौन सा पॉलिटिकल कल्चर है? हिंदुओं को बहा दोगे? वाकई क्या हालत हो गई है? बंगाल में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है यहां हिंदुओं को बंगाल में टीएमसी की सरकार ने यहां हिंदुओं को 2ym दर्जे का नागरिक बना करके रख दिया है। ये कैसे लोग हैं? जय श्री राम के उद्घोष से उनको आपत्ति है। जय श्री राम बोलो तो उनको बुखार आ जाता है। इनको राम मंदिर के निर्माण से आपत्ति है। इन लोगों को रामनवमी की शोभा यात्रा से आपत्ति है। मैं आज पूछना चाहता हूं टीएमसी सरकार से, यहां संदेश खाली में हमारी बहनों के साथ, हमारी दलित बहनों के साथ इतना बड़ा अपराध हुआ, पूरा देश कार्रवाई की मांग करता रहा, टीएमसी उसके गुनहगार को बचाती रही। क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि उस गुनहगार का नाम शाहजहां शेख था? भाइयों बहनों, कल जब मैं एयरपोर्ट पर उतरा तो एयरपोर्ट पे अपने कुछ कार्यकर्ता मुझे आए थे, मिलना हुआ, उनसे बातें हो रही, तो उन्होंने मुझे एक गाना सुनाया, एक गीत दिया। संदेश खाली की बेटियों ने, वो कोई संगीतकार लोग नहीं है, वो कवि लोग नहीं है, वहां पर मजदूरी करने वाली बहनें, ऐसी बहनें टेबल थपथपा कर संदेश खाली की मुसीबतों का एक गीत गा रही थी। वो गीत मैंने सुना, बंगाली में गीत है, लेकिन मैं अपने आंसू रोक नहीं पाया। मैं तो हर बंगाली को कहूंगा को संदेश खाली की उस बहनों का गीत जरूर सुने। इतना भाव विभोर करने वाला वो गीत है, यानी जो बंगाली नहीं है वो भी समझ जाएगा। और मैं उन 3-4 बेटियां जो गा रही है ना, उनको मैं बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने किस प्रकार से अपनी बात को पहुंचाया है। साथियों, ये टीएमसी तुष्टीकरण में लगी हुई है। आप मुझे बताइए, क्या वोट बैंक इंसान से भी बड़ा हो सकता है क्या? क्या ये तुष्टीकरण
मानव धर्म से भी बड़ा हो सकता है क्या? साथियों, अब एक नया बात लेकर के आए हैं वोट के भूखे लोग। अब 2 चरण में उनकी दुनिया डूब चुकी, तो खुलेआम एक नया खेल लेकर के आए हैं। और पढ़े लिखे कांग्रेस का खासम खास परिवार उसका प्रवक्ता है। अब ये कहते हैं मोदी के खिलाफ वोट जिहाद करो। जिहाद क्या होता है ये हमारे देश के लोग भली भांति जानते हैं। हमारे देश में दशकों से ये वोट जिहाद का खेल पर्दे के पीछे चलता था, चुपचाप चलता था। पहली बार वो इतने हताश और निराश हो चुके कि खुलेआम अब वोट जिहाद की सार्वजनिक माइक पर घोषणा कर रहे हैं। इसलिए वोट जिहाद की इस अपील पर कांग्रेस का शाही परिवार चुप है। यहां टीएमसी का परिवार चुप है, लेफ्ट का परिवार चुप है। यानी कांग्रेस हो, लेफ्ट हो, टीएमसी हो, ये इंडी अलायंस के जो भी चट्टे बट्टे हैं सारे के सारे वोट जिहाद से सहमत है। जो लोग वोट जिहाद करने वाले हैं, क्या आप उनको उत्तर देंगे कि नहीं देंगे? उत्तर देंगे कि नहीं देंगे? कैसे उत्तर देंगे? कैसे उत्तर देंगे? पूरी ताकत से वोट करके उत्तर देंगे और हम हमारा वोट देश के लिए देंगे। हम प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, हम विकसित भारत के लिए वोट करेंगे। আপনি দেশের নামে ভোট করুন, বিকশিত ভারতের জন্য ভোট করুন। साथियों, टीएमसी हो, कांग्रेस हो या लेफ्ट हो, ये जो इंडिया अलायंस है ये अपने वोट बैंक के हितों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप देखिए, कांग्रेस के नेता घोषणा कर रहे हैं कि आपके मकान, आपकी दुकान, आपके खेत, बहनों के गहने सबका एक्सरे करेंगे। बताइए, आपके लॉकर का एक्सरे होगा, आपके घर में क्या पड़ा हो इसका एक्सरे होगा, आपकी दुकान में क्या है एक्सरे होगा, आपके पास क्या कमाई हुई है उसका एक्सरे करेंगे। ये लोग आपकी कमाई का एक हिस्सा जब्त करेंगे और फिर अपनी ये जिहाद वोट बैंक वाली खास वोट बैंक है ना, उनको वो देना चाहते हैं। क्या आप अपनी संपत्ति लूटने देंगे? आप अपने गहने लूटने देंगे? आप अपना मंगलसूत्र छीनने देंगे? क्या टीएमसी और लेफ्ट ने कांग्रेस के इस खतरनाक खेल का विरोध किया क्या? क्योंकि इन सब का पर्दे के पीछे एक ही एजेंडा है। साथियों, हमारे संविधान की मूल भावना है कि भारत में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। ये निर्णय संविधान सभा ने बहुत सोच विचार कर किया था। बाबा साहब आंबेडकर ने भी जीवन भर धर्म के आधार पर आरक्षण के खिलाफ
बहुत कुछ कहा है, लेकिन कांग्रेस देश में धर्म के आधार पर आरक्षण देने की साजिश कर रही है। ये एससी, एसटी, ओबीसी के हक का आरक्षण उनसे छीन करके अपने खास वोट बैंक, जिहादी वोट जहां से मिलने वाला है, उनको देने के लिए संविधान बदलना चाहते हैं। मैंने सोचा कांग्रेस इतना पागलपन क्यों है उसके विषय में, तो मैंने कुछ लोगों को पूछा। मैंने कहा भाई क्या ये क्यों ऐसा कर रहे हैं? बोले उनका सीधा सीधा हिसाब है कि वो अब दलितों को, आदिवासियों को और ओबीसी, उनको जबरदस्त सजा करना चाहते हैं। मैंने कहा दलित, आदिवासी और ओबीसी को सजा क्यों? बोले सजा इसलिए करना चाहते हैं कि मोदी आज जो बैठा है ना, उसका कारण अब दलित मोदी को वोट देता है, आदिवासी मोदी को वोट देता है, ओबीसी मोदी को वोट देता है, और इसलिए 50 साल तक जो कांग्रेस के साथ रहे, वो दलित, आदिवासी और ओबीसी कांग्रेस से खिसक गए, मोदी के साथ चले गए, मोदी का काम देख करके चले गए। तो अब उनको लगता है कि अब दलितों को, आदिवासियों को और ओबीसी को सजा करे, और उनके पास जो सबसे बड़ा हथियार है आरक्षण का, वो लूट लें और मुसलमानों को खुश करें, धर्म के आधार पर ये आरक्षण उनको दे दें ताकि उनकी वोट बैंक की राजनीति चलती रहे। और इन्होंने ये पाप कर्नाटका में ऑलरेडी शुरू कर दिया है। टीएमसी लेफ्ट इतने बड़े भयंकर पाप में भी चुप है, और मैं पिछले 10 दिन से लगातार कांग्रेस को 3 चैलेंज कर रहा हूं, लेकिन वो मौन रख करके बैठ गए हैं। मेरा पहला चैलेंज है कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन वाले देश को लिखित में विश्वास दें कि वे धर्म के आधार पर आरक्षण में, संविधान में कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। दूसरा मेरा चैलेंज है, ये लिखित में देश को वादा करें कि एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण छीनकर धर्म के आधार पर किसी को भी नहीं बांटेंगे। मेरा तीसरा चैलेंज है, वो लिखित में दे, जहां इनकी राज्य सरकारें हैं वहां ओबीसी का कोटा काट करके धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। मेरी 3 साफ साफ मांग है भाई, मेरी चुनौती है उनको, मेरी चैलेंज है। 10 दिन हो गए, मुंह पे ताला लगा करके बैठ गए हैं और पैर कांपने लगे हैं, जवाब क्या दें? और इसलिए देश के हर एससी, एसटी, ओबीसी को ये इंडी गठबंधन के इरादों से सावधान रहना है। ये आपको सजा देने के मूड में है, आपके पास जो है वो लूटने के मूड में है। साथियों, मोदी जिंदा है ना, तब तक मैं लूटने नहीं दूंगा। मेरे दलित, आदिवासी, ओबीसी भाई मुझ पे विश्वास करें, मोदी जिंदा है, वो आपका हक की एक भी चीज लूटने नहीं देंगे। साथियों, बंगाल साक्षी है कि कांग्रेस ने धर्म के आधार पर देश को विभाजन किया था। पड़ोसी देशों में जो हिंदू, बौद्ध, जैन, ईसाई, पारसी, ये सारे अल्पसंख्यक वहां पर रहते थे, तब उनको संरक्षण देने का वादा किया गया था।
1947 में वादा हुआ है, उस वादे को निभाने के लिए आज 75 साल तक काम नहीं हुआ। अब मोदी ने किया, सीएए कानून लाया। इनमें बहुत बड़ी संख्या में मेरे दलित परिवार है, नामशूद्र परिवार है, संथाल परिवार है, जिनके साथ वहां जुल्म हुआ, वो यहां आने के लिए मजबूर हुए। लेकिन टीएमसी, लेफ्ट और कांग्रेस, ये पूरा इंडी गठबंधन सीएए को खत्म करने की घोषणा कर रहे हैं। आप सावधान रहिए, ये अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। साथियों, मीडिया के कई साथी एक्सपर्ट के साथ अब भी ये अनुमान लगा रहे हैं कि चुनाव कौन जीतेगा। अब ना किसी ओपिनियन पोल की जरूरत है, ना किसी एग्जिट पोल की जरूरत है। मैं उन्हें कब से बता रहा हूं, देश बता रहा है कि भाई रिजल्ट क्लियर है। मैंने तो पहले ही कहा था कि इनकी बड़ी ने, मैंने पार्लियामेंट में कहा था, तब तो चुनाव को 2 महीने की 3 महीने की देर थी। मैंने कहा था इनकी सबसे बड़ी नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेगी, वो डर के मारे भाग जाएगी। और वो भाग करके राजस्थान गई और राजस्थान से राज्यसभा में आई, और हुआ भी यही। मैंने पहले ही बता दिया था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं, और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा, वो दूसरी सीट खोजने लग जाएंगे। और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे, अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग घूम घूम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं, और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। और आज मैं एक और बात कहूंगा, कांग्रेस इस बार पहले से भी कम सीटों पर सिमटने जा रही है। वो पहले से कम सीटें लड़ रहे हैं, तो अपने आप भी कम जाना थल है। अब देश भी समझ रहा है कि ये लोग चुनाव जीतने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ देश को बांटने के लिए चुनाव के मैदान का उपयोग कर रहे हैं। भाई और बहनों, इंडी गठबंधन सिर्फ एक वोट बैंक के लिए समर्पित है, जबकि हम सबका साथ, सबका विकास के मंत्र पर काम करने वाले लोग हैं। मोदी ने 10 साल में बंगाल के गरीबों के लिए, दलित, आदिवासी पिछड़ों के लिए 38 लाख से ज्यादा पक्के घर बनाए हैं, करीब करीब आधा करोड़। मोदी आज बंगाल के 6 करोड़ जरूरतमंदों को मुफ्त राशन दे रहा है। मोदी ने बंगाल के 80 लाख से ज्यादा घरों तक नल से जल पहुंचाया है। मोदी ने बंगाल के 5 करोड़ लोगों के जनधन खाते खोले। मोदी ने पीएम सुरक्षा बीमा योजना अंतर्गत जीवन ज्योति योजना के तहत मामूली प्रीमियम पर गरीबों का बीमा किया। मुश्किल समय में ऐसे गरीबों को अकेले बंगाल में 450 करोड़ रुपए की क्लेम राशि दी गई है। मोदी ने वर्धमान के लाखों किसानों की पीएम किसान सम्मान निधि के तहत करीब 500 करोड़ रुपए इस वर्धमान इलाके में दिए। इसका लाभ यहां जो आलू के किसान हैं उनको मिला है। साथियों, लेकिन मुझे अफसोस होता है कि मोदी के प्रयासों पर टीएमसी हर तरह से डाका डालने पर तुली है।
केंद्र सरकार की हर योजना में यहां टीएमसी के तोलाबाज लूटपाट मचा रहे हैं। टीएमसी के तोलाबाजों ने शिक्षकों की भर्ती में लाखों नौजवानों के साथ धोखा किया है। और कैसा भ्रष्टाचार हुआ, वोटो नोटो के बंडल देखे आपने। मशीन थक जाते थे, नोट गिनने वाले मशीन थक जाते थे बंगाल में, इतने रुपये मार लिए। वर्तमान तो ऐसे भ्रष्ट टीएमसी नेताओं को अब जनता भी पहचानती है, जान गई है। लेकिन साथियों, मैं जानता हूं शिक्षक की भर्ती का जो घोटाला हुआ, उसमें जो पीड़ित है उनकी जिंदगी कितनी बदहाल हुई है। और मेरे अध्यक्ष जी यहां बैठे हैं बंगाल के, मैं उनको एक सुझाव देता हूं कि ये जो शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ है, लेकिन उसमें बहुत निर्दोष लोग भी हैं जो सचमुच में शिक्षक की नौकरी के हकदार है। ये बाकियों के पाप के कारण ये निर्दोष लोग भी मुसीबत में गिर गए हैं। मैंने पश्चिम बंगाल के हमारे बीजेपी के अध्यक्ष जी से कहा है कि हम पार्टी के तौर पर ये जो शिक्षक भर्ती में जिनकी नौकरी गई है, उसमें नेक ईमानदार लोग हैं, हम उनकी मदद कैसे कर सकते हैं। मैंने बंगाल बीजेपी से कहा है कि प्रदेश स्तर पर एक लीगल सेल और एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाया जाए। इससे उन लाभार्थियों को मदद होगी जो डॉक्यूमेंट्स सही होने के बाद भी इस घोटाले के शिकार हुए हैं। बीजेपी ऐसे अभ्यर्थियों को कानूनी सहायता भी देगी और उन्हें न्याय दिलाने के लिए पूरी ताकत से काम करेगी। हम ईमानदार के साथ खड़े रहेंगे और मेरा बंगाल यूनिट भले चुनाव चलता रहे, लेकिन ये काम करेगा। और जिन शिक्षक ईमानदार शिक्षक जिन्होंने भ्रष्ट किया है वो सजा भुगतेंगे, लेकिन बहुत ईमानदार लोग हैं जिनके पास सच्ची डिग्री है, इन दिनों वो भी फंस गए हैं। जो सच्चे लोग हैं उनको न्याय के लिए हमारा पश्चिम बंगाल काम करेगा, ये मोदी की गारंटी है। टीएमसी के तोलेबाजों की मनमानी नहीं चलने दी जाएगी। टीएमसी तोलाबाजी चलते देबो ना, एटा मोदी गारंटी। हर लूट की, हर घोटाले की जांच होगी, जरूर होगी। साथियों, बंगाल के विकास के लिए आपको हर बूथ पर बीजेपी को जिताना है। वर्धमान पूरब से हमारे साथी असीम कुमार सरकार जी और वर्धमान दुर्गापुर से मेरे बहुत निकट साथी भाई दिलीप घोष, इनको विजयी बनाना और इनको मिलने वाला हर वोट मोदी की शक्ति बढ़ाएगा, मोदी को मजबूत देगा। उनको दिया एक एक वोट सीधा मोदी के खाते में जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा मतदान कराएंगे, पोलिंग बूथ जीतेंगे। सुबह 10 बजे के पहले मतदान हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। अच्छा, मेरा एक और काम करेंगे, हाथ ऊपर करके बताइए, करेंगे? सबके सब करेंगे। यहां से जाने के बाद घर घर जाना, सब परिवारों में जाना और कहना मोदी जी आए थे और मोदी जी ने सबको जय श्री राम कहा है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी 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 मोदी
मोदी मोदी मोदी मोदी मोदी मोदी मोदी मोदी मोदी मोदी मोदी मोदी मोदी मोदी मोदी मोदी मोदी मोदी मोदी मोदी मोदी मोदी मोदी मोदी मोदी मोदी मोदी मोदी मोदी मोदी मोदी मोदी